Good morning, sir, ma'am, and everyone. It's Risu Moria here. I belong at Alipur. I have completed my 10 plus 2 from UCO Allahabad. Nowadays, I'm pursuing spoken and computer, Global Skill Computer Academy Khaga. My hobby is listen music, and she is my partner. Introduction. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. It's Sakshi Arish. Guys, today's presentation and my topic is social media and networking. You know what is social media? Social media, it means it's connected to society and connected to other, because everyone know that earlier no anyone have cell phone. If anyone talk to other and send the message, then they use letter, because on that time no anyone improve, but now we have technology, and if we talk to other, then we use cell phone. We use cell phone, and cell phones have many icon like phone, YouTube, Reels, Snapchat, Instagram, many icon. And if anyone talk to other, then we use phone app and send the instruction or anything. We use cell phone and talk to other, then use phone app. And second is YouTube. If you want to watch the movie or listen a song, and if you want to study online, offline, or anything, if you need to any type of book, then you use YouTube, because it's given you all type of notebook, everything. And Instagram, it's a trending app because everyone use it. We can chat to other with help of this app, or make a video and earn money. In this time, it's a trending app. And if we talk about WhatsApp, then it's also a chat app. We can chat to other, send the instruction or information, data, more thing, and we can talk to face to everyone. It's also provided the audio call, video call, many things. And Google, it's a we can say it's a bank of information, because they have they provided you everything. If you need to any answer, you ask the question of Google, then he given you more information. It is the social media. And every in this time, technology, we use technology, and technology depend on networking. Without network, they can't operate. And what is networking, what the use of network, my partner will tell you. सबसे पहले अगर हम नेटवर्किंग की बात करते हैं तो नेटवर्किंग के बिना आजकल कुछ पॉसिबल नहीं है। अगर हम सोशल मीडिया का भी यूज कर रहे हैं तो वो नेटवर्किंग के माध्यम से ही सोशल मीडिया का यूज करके कोविड पीरियड के बाद सोशल मीडिया का यूज सबसे ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि सब लोग घर पर आ गए, सारा काम घर पर होने लगा, वर्क के लिए जो स्टडी करते हैं, स्कूल स्टडी, सारी सारी चीजें घर पर हो गई, जो ऑनलाइन हो गई। इसलिए हमारा सोशल मीडिया कोविड पीरियड के बाद उसका टाइम टेकिंग ज्यादा हो गया, और सोशल मीडिया के लिए सबसे ज्यादा जरूरी नेटवर्किंग होता है। तो नेटवर्किंग के माध्यम से हम सोशल मीडिया पर जोड़ सकते हैं। थैंक यू। Thank you, guys. Good morning, sir. Good morning, everyone. My name is Simran Ansari. Simran Ansari is here. It's my partner. Today's my topic social media. सोशल मीडिया एक डिजिटल टेक्नोलॉजी है। सोशल मीडिया में हम कंप्यूटर ह्यूमन कम्युनिकेशन को एक दूसरे से आदान प्रदान कर सकते हैं। सोशल मीडिया से हम यूजर जो होते हैं, बहुत सारे जो एप्स हैं डाउनलोड होते आते हैं, ये सोशल मीडिया के थ्रू होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया का सबसे पहला जो ऐप था वो था 6 डिग्री था, जो अमेरिका के एंड्रयू विनलिस्ट नामक उन्होंने लॉन्च किया था 1997 में। उसके बाद 2010 में वो आपको बंद हो गया था। इन 3-4 सालों में उसमें इतने ज्यादा फॉलोवर्स हो गए थे, इतने ज्यादा उसमें फैमिली फ्रेंड्स बहुत सारे कनेक्ट हो गए थे। अपने इंडिया में फर्स्ट ऐप है सोशल मीडिया, वो है फेसबुक, फिर 2010 में लॉन्च हुआ था।
उसके बाद धीरे धीरे इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब, ट्विटर आदि बहुत सारे ऐप आ गए थे। सोशल मीडिया में बहुत सारे यूजर्स आज बहुत सारे अपडेट हो रहे हैं, बहुत सारी अर्निंग हो रही है, सैलरी भी मिल रही है, फॉलोवर बढ़ रहे हैं, फॉलोइंग हो रहे हैं, एक्सेट्रा। Good morning, sir, and good morning, ma'am. Good morning, everyone. What is the definition of social media? यानी कि सोशल मीडिया की क्या डिफिनेशन है? सोशल मीडिया इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन share ideas, information, pictures and videos, etc. सोशल मीडिया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपनी आइडियाज़ और पिक्चर्स और वीडियो वगैरह को शेयर कर सकते हैं। तो देयर आर वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे है कि हमारा स्नैपचैट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसके ऊपर जहाँ पर हम सोशल मीडिया पर अपनी जो आइडियाज़ वगैरह हैं और पिक्चर्स वगैरह हैं इन्हें हम शेयर कर सकते हैं। तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज 1 पॉइंट है, इजी एंड फास्ट कम्युनिकेशन। सोशल मीडिया एक सरल और एक बहुत ही तेज कम्युनिकेशन का माध्यम हो गया है, एक संचार का माध्यम हो गया है। जैसे कि देखा जाए पुराने ज़मानों में जैसे देखा जाए तो कहते हैं कि कबूतर जा, ये सॉन्ग सुना होगा आप लोगों ने। तो पहले वो कबूतर को चिट्ठी पकड़ाते थे और फिर उसको आगे तक लेकर जाता था, और फिर उसके बाद डाकिया का ज़माना आया, फिर उसके बाद टेलीग्राम का आया, और आज है कम्युनिकेशन इज़ फास्ट। इतना ज़्यादा हमारा सोशल मीडिया फास्ट हो गया, कभी भी किसी भी वक्त हम अपने वीडियो को और फोटोज़ वगैरह को इनको हम शेयर कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट है एडवांटेज का, कीप अस कनेक्टेड विद ऑल। सोशल मीडिया हम सभी को जोड़े रखता है, सभी के साथ, विद आवर फैमिली मेम्बर्स, विद आवर फ्रेंड्स, विद आवर रिलेटिव एंड विद आवर ओल्ड पर्सन। सभी के साथ कनेक्टेड रहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। 3 पॉइंट है एडवांटेज का, तो एनी वन कैन शो टैलेंट एंड स्किल। सोशल मीडिया एक ऐसा हमारा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर कोई भी व्यक्ति, वो चाहे गरीब हो, वो चाहे अनपढ़ हो, तो उसकी जो टैलेंट है, जो स्किल्स है, वो अपना सोशल मीडिया पर दिखा सकता है, बता सकता है। जैसे कोई डांसर हो गया, सिंगर हो गया, और कोई ड्राइंग करना जानता है, तो ये सारे जो उसके टैलेंट है और जो स्किल्स हैं वो दिखा सकता है और बता सकता है। तो एडवांटेज का 4 पॉइंट है, शेयरिंग आइडियाज, इंफॉर्मेशन, पिक्चर्स एंड वीडियोज एक्सेट्रा। तो सोशल मीडिया हर तरह से एक सरल माध्यम हो गया है, कभी भी हम किसी भी टाइम अपनी फ़ोटोज़ वगैरह को आसानी से शेयर कर सकते हैं और एक साथ शेयर कर सकते हैं। तो इसके डिसएडवांटेज ये हैं कि वेरी बैड एडिक्शन, यानी कि एक हिसाब से अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया कुछ लोगों के लिए बहुत बुरी लत बन गया है। जैसे कि मतलब सोकर उठे सुबह सुबह तो वो सोशल मीडिया, और मतलब सो रहे हैं तो वो सोशल मीडिया, एक बहुत ही बुरी तरीके का लत बन गया है। तो इसका डिसएडवांटेज का 2 पॉइंट है, डिस्ट्रक्शन इन पर्सनल लाइफ एंड डिस्टर्ब स्लीपिंग आवर्स। सोशल मीडिया पर हम कहीं ना कहीं व्याकुल हो गए हैं और हमारा जो पर्सनल लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो गया है। और अगर जैसे देखा जाए कि सुबह सुबह सोकर उठे तो सोशल मीडिया, और सोने के टाइम भी सोशल मीडिया, जो हमारे नींद का समय है वो भी डिस्टर्ब हो गया है। तो एडवांटेज का 3 पॉइंट है, तो जैसे फेक न्यूज़ एंड रूमर्स, ये हमारा सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी झूठी खबरें और अफवाहें भी मिलती रहती हैं जिससे लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो ये डिसएडवांटेज का बहुत ही बड़ा फेक न्यूज़ और रूमर्स है। बस, थैंक यू। Good morning, sir. Good morning, ma'am. And good morning, my lovely friends. I'm related to our state of a reality and loyal family, and I'm a Shivani Agnuti here. I'm pursuing graduation from Raju Bhaiya University, Prayagraj. Nowadays, I'm learning Global Skill Academy, Khaga. Today's task is to be marvelous. That is our internet. So I explain that what is internet and how to be our use. So firstly, I'm explain that in हिंदी। इंटरनेट हमारे संचार माध्यम के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक चीज होती है। इंटरनेट से हम ऐसी चीजें कर सकते हैं जो पहले के समय में संभव नहीं थी। जब से इंटरनेट आया है, मेरे विचार से
हम लोग कुछ भी करते हैं तो इंटरनेट के माध्यम से ही करते हैं। कोई भी चीज आगे लानी होती है, डेवलप करना होता है, तो हम इंटरनेट पे पहले जाते हैं कि नहीं इससे ले लेते हैं, इससे अच्छा सजेशन मिल जाएगा। तो इंटरनेट का जो पहले विचार आया था वो रॉबर्ट ई कैहन और रिचर्ड कैट के माइंड पे आया था। उन्होंने 1970 में सोचा था, बट वो कुछ कर नहीं पाए थे। उन्होंने सिर्फ ये सोचा था, पर वो बाहर गए, उन्होंने इसका संचार बाहर किया, अपनी कंट्री में वो नहीं कर पाए। तो हमारी कंट्री में जब आया तो ब्रजेश सर है, उन्होंने इसका संचार किया 1995 में। ये सरकार के माध्यम में 1995 में आया, पर जब हमारे सरकार जब इतनी लॉयल है, इतना सब कुछ जानते हुए भी हमें कितने टाइम बाद नेटवर्क का पता चला। मतलब हमें इंटरनेट हमारे माइंड पे था, इंटरनेट हमें पता भी था, पर हम इंटरनेट ला नहीं पाए। 1970 और 1995 में बहुत ही टाइम लग गया। इसमें हम बहुत कुछ सीख सकते थे, बहुत सारी स्किल्स आ सकती थी हमारे माइंड पे, पर इंटरनेट तब हम नहीं ला पाए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये मैंने कुछ थिंग्स प्रिपेयर करी है जिनमें से हम ये समझते हैं कि इंटरनेट कहाँ से हम लाए थे, कैसे हमने इसका यूज किया, इंटरनेट कैसे कैसे बन गया। तो इंटरनेट का यही, इसका समझाने का मेरा सिर्फ यही मीन्स था कि हम इंटरनेट क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, इंटरनेट कैसे आया। तो इंटरनेट से मैं, इससे आप लोग काफी डाउटफुल होंगे कि इंटरनेट इससे क्या रिलेटेड है। तो जब स्टार्टिंग की बात करती हूँ 1917 की, तो तब हमारे टाइम पे ऐसा कुछ भी सोशल मीडिया, नेटवर्क या वेब का कोई वर्जन नहीं था। तो हमारे टाइम पे सिर्फ ये ऐसे ही फॉरेस्ट थे, मेल्स थी, जिनसे हमने ये सोचा कि हम इसको कैसे हटाएं। तो हमने इनको कट करके अपने नेटवर्क को लाने की सोची और हमने इनको हटाया, इनकी जगह पे हम इंटरनेट को लाए, इनका माध्यम गया वहां से। तो सबसे बड़ी चीज थी, हमारे लिए जरूरतमंद भी बहुत है, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, फिर भी हमने इनको हटाया क्योंकि हमें इंटरनेट की जरूरत थी। ये हटाने के बाद हम आते हैं अपने लैपटॉप पे। हाँ, अपने लैपटॉप सब लोग यूज करते हैं, अब तो बहुत ही नॉर्मल हो गया है। पहले के टाइम पे ये नॉर्मल नहीं था, बट अब बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है, सब लोग यूज करते हैं क्योंकि इसका यूज भी बहुत होता है, बहुत अच्छे तरीके से होता है। बट अगर मैं कहूँ तो इसका यूज भी बहुत होता है, लोग इससे बहुत ही ज्यादा डिवाइड हो गए। अब आप तो अपने काम में बिजी हो, आपका काम कर रहे हो, पर अगल बगल क्या हो रहा है, दुनिया कहाँ जा रही है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं होता है। आप जितना चाहते हो, आप पूरा का पूरा इंटरनेट पे ही डिपेंड है। आप आगे की दुनिया खुद से नहीं समझना चाहते। पर हमारे पहले के लोगों ने, जो लोग इंटरनेट लाए, क्या वो इंटरनेट से रिलेटेड है? क्या उनको इंटरनेट का कोई भी नॉलेज था? किसी को कोई नॉलेज नहीं था इंटरनेट का। सब लोगों ने अपने माइंड से सोचा, अपने माइंड थॉट अंदर से बाहर लाए और उन्होंने तब एक्सप्लेन किया व्हाट इज इंटरनेट, हम इंटरनेट से क्या क्या कर सकते हैं। और रही बात हमारी अब की दुनिया की, तो हम लोग इंटरनेट जानते हैं, पर हम लोग सिर्फ इंटरनेट पे ही अब डिपेंड हो गए। वो लोग लाए तो इंटरनेट, वो अपने माइंडसेट पे लाए थे, पर हम लोगों ने क्या किया, हम लोग पूरा का पूरा इंटरनेट पे ही डिपेंड हो गए। और इंटरनेट की जो बात करूं, या मैंने इस पे डिस्क्राइब किया हुआ है, इंटरनेट की अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो नहीं कर सकती, क्योंकि ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। मैं अपने देश की पूरी बात एक्सप्लेन नहीं कर सकती, कहने को तो बहुत सी चीजें इनसे कहने के लिए है। इंटरनेट हमारी पूरी दुनिया के संचार का माध्यम है। और रही बात हमारे इंटरनेट के संचार के माध्यम की, तो सब लोग वैसे ही यूज करते हैं जैसे कि हमारा इंटरनेट दिखाई देता है। पर इंटरनेट में सबसे बड़ी चीज होती है कि हम उसको पूरी दुनिया में कैसे ले जा सके। किसी एक इंसान ने इसको अपने माइंड पे सोचा और फिर उसको पूरी दुनिया पे फैला दिया। तो मैं एक ही चीज चाहती हूँ कि हर एक चीज अपने यहाँ हो सकती है। हम लोग बिजली ला सकते हैं, हम लोग सर्वर्स दे सकते हैं, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। मैं सबसे सिर्फ एक ही चीज मांगती हूँ कि इंटरनेट हम लोग बहुत यूज करते हैं, बहुत ही हमारे लिए यूजफुल भी है, तो इसको कैसे आसान बनाए। सबके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं हो सकता है क्योंकि सब लोग इतना रिच नहीं है। आज की दुनिया में तो अभी नॉर्मल चल रहा है, पर जिस हिसाब से चल रहा है वैसे इंटरनेट बहुत ही ज्यादा हाई लेवल में पहुंचने वाला है और इसका रेंज सबसे ज्यादा होगा। तो मैं चाहती हूँ कि इंटरनेट को हम लोग आसान कैसे बनाए, हम लोग क्या करें जिससे इंटरनेट हमको खुद समझ में आए कि हम ऐसे करें हमको इंटरनेट मिल जाएगा और हम इससे आगे की दुनिया बना सकते हैं। मैं सब कुछ मैंने बहुत ही ज्यादा सर्च किया कि हमने सब कुछ बनाया है, पर हम इंटरनेट खुद से कैसे बनाएं, इंटरनेट को हम कहां से लाएं जिससे हम खुद की स्किल्स तैयार कर सके। मुझे खुद के थॉट सब लाने हैं आगे, ना कि मुझे पूरा का पूरा इंटरनेट पे डिपेंड होना है। तो अगर इंटरनेट पे डिपेंड नहीं होना तो मुझे इंटरनेट को समझना पड़ेगा, इंटरनेट कैसे बन सकता है और इंटरनेट को हम कैसे इजी बना सकते हैं। तो मेरा एक ही क्वेश्चन है सबसे, जिसको भी पता हो वो मुझे सजेशन में बिल्कुल बताए। मुझे इसकी बहुत ही ज्यादा नीड है कि इंटरनेट हम खुद से कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, खुद से कैसे बनाए। लोगों से मुझे जरूरत नहीं है, मुझे खुद के थॉट्स अगर आगे लाने हैं तो मुझे इंटरनेट की जरूरत है और मुझे इंटरनेट खुद से बनाना है। ये कैसे बनता है, ये कहाँ से आया, ये मुझे जानना है। थैंक यू फॉर दिस माय वीडियो एंड थैंक यू फॉर दिस
ना इंटरनेट पे जो इंफॉर्मेशन होती है टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन होती है फिर ह्यूमंस की इंफॉर्मेशन जो सर इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन दी जाती है वो ह्यूमंस की इंफॉर्मेशन होती है, पर जो ह्यूमंस के पास इंफॉर्मेशन आती है वो हम लोग टेक्नोलॉजी से कलेक्ट करके इंटरनेट को देते हैं। तो हमारे पास तीनों चीज तो आ गई, पर हम लोग इंटरनेट कहाँ से लाए? फर्स्ट क्वेश्चन था। इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन होती है जो कोई सर्च करते हैं इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन होती है वो दुनिया भर की इंफॉर्मेशन होती है। उसको हम लोग क्या करते हैं जैसे एक हजार लोगों के एक ही टॉपिक पे जो उनके थॉट्स होते हैं उसको कलेक्ट करके हम लोग नेट पे डालते हैं। अगर आपको ये आज के जनरेशन में क्या होता है कि सबके पास रहेगा ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा 100% की पॉपुलेशन से केवल 99.99% जो 1% बचे होंगे 1 पॉइंट का जो उनके पास मे भी नहीं होगा इंटरनेट के आंसर सबके पास हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं वो खुद से इंटरनेट बनाना है तो देखिए इंटरनेट क्या है कि सबकी थॉट्स तो आपको सोशल मीडिया से कनेक्ट होना पड़ेगा और सोशल लोगों से कनेक्ट होना पड़ेगा और उनसे बातचीत करनी पड़ेगी इसी टॉपिक को लेकर। तो आपके पास 100 लोगों की इंफॉर्मेशन होगी इसी टॉपिक को लेकर तो आप इतना इंटरनेट खुद ही क्रिएट कर सकते हैं। इंटरनेट जो भी पहले सबका ही है ना। बट सर क्वेश्चन ये आता है कि हम इंटरनेट पे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनसे कम्युनिकेशन करते हैं, बट सर उसमें ये चीज होती है ना कि कुछ लोगों ने तो बोला कि हाँ 2 टॉपिक सेम थे उनके, बट 50% लोगों के टॉपिक्स अलग होते हैं। कोई कहता है कि आप इंटरनेट पे ये वेब यूज करो, पर कोई कहता है नहीं ये वेब तो बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस है हमारे लिए, तो हम उस वेब पे क्या करेंगे? तो आपके बारे में मेरी प्रश्न ये है कि आप क्या चाहते हैं इंटरनेट हम लोग यूज ना करें? नहीं हम इंटरनेट यूज करें या फिर नो सर, ऐसा मेरा कोई भी टॉपिक नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। हम लोग सब लोग इंटरनेट यूज करते हैं, इंटरनेट से खुद को नॉलेज देते हैं, ठीक है, पर पहले इंटरनेट नहीं था तो वो लोग नॉलेज खुद के पास कहाँ से लाते थे? वो लोग बुक्स पढ़ते हैं। तो वही चीज तो मैं कह रही हूँ कि अगर वो लोग बुक्स पढ़ते थे उनके पास इंटरनेट आया, अब हमारे पास इंटरनेट है, अब हम इंटरनेट से ऐसा क्या प्रोग्रेस करें कि हम इससे आगे जा सके? सिर्फ यही क्वेश्चन है। इसे कोई इनोवेशन कहते हैं, इनोवेशन हो रहा है और भी आगे बढ़ेंगे इंटरनेट से। उसी का मैं मांग रही हूँ ना, मुझे भी वैसा ही सजेशन चाहिए ना। मैंने बुक्स पढ़ी, मैंने इंटरनेट क्रिएट किया, अब मुझे इंटरनेट से क्या क्रिएट करना है? आप ये कहना चाहते हैं कि कैलकुलेटर होता है और 100 पीपल कैलकुलेटर यूज करता है और उसके यूज करता है कि उसकी जितना भी काम है वर्क है उसकी टाइम की बचत हो और कैलकुलेशन कर लेता है। अब आप ये कहना चाहते हैं कि वो कैलकुलेटर का यूज ना करके वो ऐसे कौन सी बनाए तो कैलकुलेटर से तेज करने लगे कैलकुलेशन। सर एक ट्रिक आई हुई है, आई थिंक वो आदिवासियों ने बनाई थी कि वो किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते हैं, वो अपने कुछ हैंड की ट्रिक करके मैथ को इतना ज्यादा इजी उन्होंने कर दिया है कि वो कुछ सेकंड्स में ही इतना फास्ट हमारा इंटरनेट भी नहीं चलता है जितने फास्ट उनके हैंड चलते हैं और वो कैलकुलेट करके अपनी पूरी की पूरी मैथ रख देते हैं। मैं वो टेक्नोलॉजी की बात कर रही हूँ। उन्होंने इंटरनेट का यूज नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ खुद के जो उनके अंदर खुद का टैलेंट है उन्होंने वो बाहर निकाला और खुद के एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने वो बनाया। मैं वही कह रही हूँ कि अब हमें इंटरनेट पे कम डिपेंड होकर खुद के एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए, खुद से कुछ क्रिएट करना चाहिए। बस सीधा से यही मेथड है मेरा। थैंक यू सर। Good morning, ma'am. Good morning, everyone present here. First of all, I would like to introduce myself. My name is Bushra Naz. I am from Khara. I am a complete graduate from Allahabad University. Today's my topic guided media. What is guided media? How many type of guided media? Guided media क्या है? Guided media कितने प्रकार के होते हैं? गाइडेड मीडिया डाटा ट्रांसमिशन के लिए लाया जाने वाला एक ऐसा माध्यम है जो डाटा का आदान प्रदान करने के लिए डिवाइस के बीच में फिजिकल कनेक्शन बनाता है, उसे गाइडेड मीडिया कहते हैं। गाइडेड मीडिया कहते हैं क्योंकि इसमें सेंड किए गए सिग्नल के निश्चित दिशा निर्धारित कर उसे गाइडेड मीडिया कहते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ गाइडेड मीडिया कितने प्रकार के होते हैं? गाइडेड मीडिया 3 प्रकार के होते हैं: ट्यूशर पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल। ट्यूशर पेयर केबल डाटा ट्रांसमिशन में प्रयोग में लिया जाने वाला एक ऐसा माध्यम है जो दो कॉपर के पेयर में लिया जाता है और उसमें प्लास्टिक केबल की सहायता से इंसुलेट किया जाता है। इंसुलेट कर दिया जाता है इन दोनों जिसके पश्चात ये दोनों वायर्स को ट्विस्टेड कर देते हैं। ट्विस्टेड करने का लाभ ये है कि
भेजे गए सिग्नल आपस में मिक्स नहीं होते हैं और सिग्नल तेजी से कार्य करते हैं। ये जो वायर, अगर हम ये वायर को सीधे सीधे दोनों वायर्स को जोड़ेंगे तो अगर जब हम डायरेक्ट में सिग्नल भेजेंगे, नेटवर्क भेजेंगे, तो ये दोनों नेटवर्क मिलके ब्लास्ट हो जाएंगे, कहीं से कनेक्टिंग खो देंगे अपना। इसलिए दोनों वायर को आपस में टेस्ट कर देते हैं कि सिग्नल तेजी से जाए और सीधे सीधे जहां मतलब जिसमें कनेक्ट हो उसमें डायरेक्ट जाए। कोएक्सियल केबल का यूज, कोएक्सियल केबल काफी हाई केबल का यूज किया जाता है। ट्विस्टेड केबल में अधिक मात्रा में सिग्नल नहीं भेजा जाता है। इस वीडियो सिग्नल में ट्रांसमिट करना है तो ट्विस्टेड केबल का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें काफी हैवी सिग्नल का यूज किया जाता है। इसमें इसे ट्रांसमिट करना है तो कोएक्सियल केबल का यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें 4 परत के अलग। Good morning everyone. It's Mr. Kain Alam here. I am belong to Shahzadpur Khala Kaushambi. I am pursuing graduation from Raju Bhaiya University, Prayagraj. He is playing cricket and today his presentation is hardware. What is hardware? Hardware क्या है? मैं मार्कर पे यूज कर सकती हूँ। Two types of hardware. Hardware 2 प्रकार के होते हैं। There are 2 types of hardware. Hardware 2 प्रकार के होते हैं। Good morning, sir, and my dear friend. It's Varsha Singh here. I belong at Khasmau. I am pursuing graduation Raju Bhaiya University, Prayagraj, with science stream. This is a CPU. This is a keyboard. This is a mouse. मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। मॉनिटर सीपीयू के इंफॉर्मेशन या डेटा को एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाता है। मॉनिटर 3 प्रकार का होता है, एलसीडी मॉनिटर, सीआरटी मॉनिटर और एलईडी मॉनिटर। मॉनिटर का फुल फॉर्म होता है मैनुअली आउटपुट नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज रिपोर्ट। दिस इज अ सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू हमारा कंप्यूटर का एक ब्रेन होता है या एक इनपुट डिवाइस होता है। और सीपीयू कंप्यूटर के जितने भी कार्य होते हैं सीपीयू हमारा उसको प्रोसेस करता है। कंप्यूटर के प्रिंटर को आपस में जोड़ने तथा उनमें डाटा प्रवाह करने को टोपोलॉजी कहते हैं। यह 5 प्रकार मिनिमम आज नए आने पर ये 6 प्रकार के होते हैं। रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी यह एक गोलाकार आकृति का टोपोलॉजी होता है, नेटवर्क टोपोलॉजी होता है। यह इसमें कोई होस्ट कंप्यूटर नहीं होता है, यह गोलाकार का होता है। इसमें अगर किसी एक My name is Sasi Singh and my center Computer Academy, Global Center. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Good morning, all of you. मेरे पार्टनर है शिवम सर। My today topic नेटवर्किंग। सबसे पहले हम जानते हैं नेटवर्क होता क्या है। What is नेटवर्क? नेटवर्क वो जो होता है या 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर के समूह को हम लोग नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क किसी भी चीज को कोई लोग कहता है नेटवर्क कुछ भी होता ही नहीं। सेल फोन या मोबाइल फोन या सोशल मीडिया है, नेटवर्क जरूरत में चलेगा ही नहीं। नेटवर्क बहुत ज़रूरी है। बाजी लोग कहते हैं यहाँ पर नेटवर्क ही नहीं है, तो वहाँ पर नेटवर्क व्यवस्था की जाती है, फिर भी ये
Good morning, ma'am, and good morning, everyone. My name is Mohammad Shahzad. I am belong to Kheri Khaga Fatehpur. My first presentation इंटरनेट। जैसा कि आजकल इंटरनेट का यूज़ बहुत होता है, सबसे पहले बता दूं कि इंटरनेट की खोज ब्रिटानिया इन सर्फ ने किया था अमेरिका में, जो कि अमेरिका के आर्मी के लिए किया था। उसके बाद इंटरनेट का उपयोग आम जनता में लाया गया। धीरे धीरे सारे वर्ल्ड में इसका यूज़ हुआ। और इंटरनेट के कई फ़ायदे भी हैं और कई नुकसान भी है। इंटरनेट का यूज़ बड़ी सावधानी से करना चाहिए, जो कि आजकल इंटरनेट में साइबर क्राइम होता है, स्नैप भी होता है, स्नैपिंग होती है। इसलिए इंटरनेट जितना ज़्यादा यूज़फुल है उतना ज़्यादा हानिकारक भी है। इसलिए हमें इंटरनेट का प्रयोग बड़ी ध्यानपूर्वक करना चाहिए। फैसिलिटेटिंग टोपोलॉजी में ऐसा नहीं होता है। एक कंप्यूटर के बात करने से सारे कंप्यूटर नेटवर्क खराब हो जाते हैं, बाकी काम नहीं करेंगे। पेड़ किसानों